Okay, so we'll start today's agenda with a problem. Okay, yesterday whatever we did, उससे related एक problem, illustration example, and then we'll move to the graphical analysis of motion and few NCERT questions today we are targeting to do. Good questions from NCERT. ठीक है? तो पहला question start करते हैं, continuation. Particle under rectilinear motion. पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं. दिस इज द स्टोरी एंड इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय a is equal to, it is a non-uniform acceleration, it is given by equation like this. Acceleration is equal to 3t minus 4, t is time and it is this meter per second square. It is given to us कि at starting, मतलब at t equal to 0, particle was at 1 meter and its initial speed was 2 meter per second. This was a story at t equal to 0. So at t equal to 0, particle was not at rest, it was already moving with a speed of 2 meter per second. Question is find times when its velocity is 0. Velocity is 0. This is what we are trying to figure out. Okay, the story is clear. Straight line है, motion कर रहा है particle, acceleration is given by this. At t equal to 0 अपने को u is equal to 2 meter per second दिया हुआ है and velocity is 0. ये कब होगा? We have to find out. See, your main character here is velocity. What has been given? Acceleration. So definitely you cannot do anything with this. So first you have to figure out velocity as a function of time. This is your first target, right? So this is your targeting to figure out. You have been given acceleration, so it is reverse case, right? From acceleration you have to get to the velocity. So acceleration, velocity को आप लिखोगे, sorry, acceleration को dv by dt 3t minus 4. अब मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट dv by dt is equal to 3t minus 4, get me this guy, velocity as a function of time. आप dt को इधर लाएंगे, dv is equal to this dt होगा, इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स लगाने हैं और इंटीग्रेट करने के बाद क्या फंक्शन आ रहा है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये मुझे आप लोगों को बताना. People who have not revised yesterday's session, उनके लिए थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूँ. dv is equal to 3t minus 4 dt. I'll integrate at t equal to 0. Velocity is 2 meter per second. At t equal to t, velocity let's say is v. अब तो आप लोग कर लो, इंटीग्रेट करना है सिर्फ. So this will be v minus 2, dv का integration v and then upper limit minus lower limit. This will be integration of 3t dt minus integration 4 dt. Just separated the two. T dt का integration is t square by 2, so this will be 3t square by 2. 4 is a constant, just dt का integration is t, so this is 4t.
This is v minus 2 guys. So v will be equal to 3t square over 2 minus 4t plus 2. This is the expression of velocity with respect to time. Correct? Now what this guy wants? This guy wants us to find the times when velocity is 0. Right? So now this problem will become a quadratic equation problem that you have learned in grade 10. Because this is a quadratic function, 3t square by 2 minus 4t plus 2, right? This guy wants, tell me the time when it is 0. That means the problem is asking you to find out roots of this equation equal to 0. The problem is asking us to find when 3t square by 2 minus 4t plus 2 when this guy is 0, and this is a quadratic equation. We have to find the roots of this quadratic equation. The answer for this, there are two roots, 2 by 3 seconds and 2 seconds. Got it? So for solving this quadratic equation, मुझे नहीं मालूम आपको 10 में कैसे पढ़ाया गया है, but whenever you have a fraction in an equation, please listen here. Whenever you have a fraction in an equation, get rid of that fraction first. Means first multiply this entire equation by 2. Get rid of this fraction. This will become 3t square minus 8t plus 4 equal to 0. And then you do a middle term split and figure out the factors. 3t square minus 8t plus 4 is equal to 0. Do a middle term split and get to the factors. नहीं 2 by 3 and 2 दो रूट्स आएंगे, 2 and 2 by 3, yes, right? And that's your answer, because these are the times when the velocity is 0. These are the times when the velocity is 0. So this is 3t square minus 8t plus 4 equal to 0, right? So 4 3s are 12 and 6 2s are 12, right? So this is 3t square minus 6t minus 2t plus 4 is equal to 0. So this will be, you take 3t common, this will be t minus 2, यहाँ पे minus 2, sorry, yes, this is t minus 2 is equal to 0. So t minus 2 common लिया, so 3t minus 2 0, so t equal to 2 and t equal to 2 by, okay? So अभी आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स किस तरफ जा रहे हैं. अगेन concepts, application, a bit of maths, again a bit of maths, and then you are getting to the answer. This will be a typical scenario in problems of physics. Okay, चलो अभी हम करेंगे which topic I should start. Okay, motion under gravity. New topic. Let's put a heading: motion under gravity. Motion under gravity. See, what is gravity? Gravity is basically Earth's inherent force of attraction on each and everything, right? Force of attraction means Earth pulls everything towards its center. We know this, right? And this phenomenon we call gravity.
understand gravity as a chapter. This is the last chapter in this book, so you will study this phenomena in much deliberation. अभी हमें क्या याद रखना है कि there is a force always which earth is applying on everything, and इसी force को हम क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं. इसकी वजह से देयर इज ऑलवेज अ एक्सीलरेशन, यू कैन से डाउनवर्ड एक्सीलरेशन प्रेजेंट, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन which is called acceleration due to gravity, right? This acceleration typically it is constant and it is denoted as small letter g. It is acting downwards always, and its value near the surface of earth is 9.8 meter per second square to be precise, and approximately this can be sometimes taken as 10 meter per second square. The problem will tell you whether you got to take 10 or 9.8. Sometimes the data in the problem will drive us which value suits us better. Typically in an MCQ scenario, when the options are not very near, we should stick to 10, because we are not right. MCQ में हमको A B C D tick करना है, so we are not exerting too much calculation intensive pressure here. Just take 10. Unless until you have data like 4.9 seconds something, time is a multiple of 9.8 something like that, or otherwise problem will say take G as this 9.8 or take G as 10, then you have to take that. If not given, try to go with this with an approximation. You know that you have to just find the approximated answer. ठीक है? So this is our acceleration due to gravity, and this will be taken uniform. This will be a uniform acceleration case, though it varies. It varies as you move along the surface, move up and down from surface of Earth. It varies, but for all practical purposes, यहाँ पे हम इसको कैसा लेंगे? Uniform acceleration. Clear? Uniform acceleration. So now we will transform this scenario and map this to our kinematic equation of motion in one dimension under uniform acceleration, right? So let's say an object is falling freely, free fall, let's call it free fall. Free fall means object is falling just under gravity. There is no other force involved, air friction, any other kind of friction, that is not involved. Let's say it is just falling in vacuum, right? You can say it is falling in vacuum. ठीक है? So that means its acceleration will be g. This is, let's say, ground. Okay, let's say it starts to fall from this location. Then we take origin here, so we measure the displacement in this direction. Now this is a y direction motion, so we will not call it x, we may call it y, or typically we call it h, because we are dealing with height here. So let's say this is the height, this is how we are measuring. Object is falling through a height of h under the effect of gravity. ठीक है? So now equations of motion for a straight line, it is v is equal to u plus at. So in this scenario, this will become v is equal to u plus, instead of a we will write g. So this will be your first equation, v is equal to u plus gt. Your second equation will become h is equal to ut plus half at, so half gt square. This will be your second equation, and your third equation will become v square minus u square is equal to 2gh. So this is how our kinematic equation of motion will be transformed. Instead of a, we'll keep g,
Displacement will be h, not x. You can write y also here, right? V square is minus u square is equal to 2gh. Fine, no issues, very simple. Now, if the scenario reverses, means object is going up. Now we will measure the height from, this is our origin, we'll measure the height from here. Now in this case, acceleration will be minus g. Why? Because we are taking this direction as positive, object going upwards is positive, and acceleration is downwards. Object is moving upwards and we have taken this direction as positive, so g has to be taken minus g. So in this case your equation will become v is equal to u minus gt. Okay, h is equal to ut minus half gt square, and the third equation will become v square minus u square is equal to minus 2gh. This will be your, while doing the problems you don't have to mug up all this, right? Because this is just a replacement of g with minus g, right? So if you know your basic equation v is equal to u plus at and the other two, you can just always transform. I'm just telling you conceptually how you can do this. It's more of a doing a problem rather than mugging it up. Now few special scenarios. These are important now. What I'm going to tell you now is very important. This is plain and simple vanilla stuff. No smartness, nothing big here, right? Same equations, just values different. Now, first thing is maximum height. What is this scenario? Typically, when an object is projected vertically upwards, क्या है? Vertically upwards projection, right? It has been projected with a velocity u, right? So it will go up to a certain height, stop, and then start to come back, right? It will go up to a certain height, stop for a fraction of a second, and then start to come back. So this height is called h max, or sometimes capital H. We want to understand in terms of u what will be the value of maximum height. So we will use our formula v square minus u square, right, is equal to minus 2gh in this case, because object is going upwards, minus 2gh. Now maximum height v has to be 0, right? So this will be 0 square minus u square is equal to minus 2gh. That means u square is equal to 2gh. That means h, in this case h will be called h max. Maximum height will be u square by 2g. Now you can mug it up as a formula if you want, or if you want to just write these two lines and get to this formula, it's up to you. But it's good to remember this formula, but please make sure you are not applying it blindly. This is from the perspective that the object is thrown vertically upwards from ground, then this height is this. If this is projected from a tower or a height, then this initial height will have to be added in the maximum height, right? So don't just apply it blindly. Remember the scenario as well. This is from ground, right? From ground, right? Then the next thing is time of flight. Time of flight. It is typically denoted with capital T. Time of flight. Time of flight क्या है? It started, let's say this is t equal to 0, and then went up and came all the way back again, right? We want to measure this complete time of flight. तो वो कैसे करना है? We will first, there are two times here, right? First this going up and coming down,
going up and coming down. So let's say going up is t1, let's say this is t1, going up time is t1. So we can figure it out via v is equal to u minus gt. Again v has to be 0, maximum height, so 0 is equal to u minus gt 1. So t1 would be u by g, right? And you can calculate this. T1 and T2 will be exactly similar. T2 will also be coming as u by g. Again, right, from 0 it will again attain velocity u, right? So this will be u by g again. So total time will be T1 plus T2. So total time would be 2u by, this is capital T, 2u by g. That is the time of flight. Means this is the time it was in air, went up and came back, 2u by g. Time for going up and coming down is exactly same, right? Because it is in vacuum, there is no other force in question here. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक सिनेरियो देना चाहता हूँ. अब जो मैं बता रहा हूँ अगले 5 मिनट में, ये इंपॉर्टेंट है. ये आपको शायद किसी बुक में नहीं मिलेगा. एनसीईआरटी ने एक जगह ट्राई किया समझाने का बच्चों को, बट नॉट वेरी गुड. बट ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके फंडे क्लियर करेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब जो मैं बताने जा रहा हूँ तो प्लीज बहुत जगने की कोशिश करो. ये जो इक्वेशंस हैं डियर काइनेमेटिक्स की, इसमें जो हम h यूज करते हैं, h या फिर x या फिर y, ये डिस्टेंस नहीं है, ये है डिस्प्लेसमेंट, राइट? एक्चुअली क्या था, हमने स्ट्रेट लाइन मोशन यूज किया तो तुमने एज्यूम कर लिया था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से, सो वी कुड यूज दिस वर्ड्स इंटरचेंजेबली, राइट? बट इन एक्चुअली दीज x and y or whatever distance is there in these equations, they are actually displacement. समझ रहे हो आप? सो अभी यही जो टाइम 2u by g है, इसको हमें क्या करना पड़ा, हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ा, T1 फिर T2, राइट? अगर मुझे इसको 1 शॉट निकालना हो तो मैं कैसे इसको अटैक करूंगा प्रॉब्लम को? दिस इज इंपॉर्टेंट. सो अब यहां पे फंडे वाली बात आती है. इस ऑब्जेक्ट को मैंने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था ऊपर, राइट? मैंने क्या बोला था आपको कि इम्प्लिसिटली जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट का, वी टेक एन एजम्पशन कि दिस इज माय ओरिजिन. सो हम ये बोल देते हैं दिस इज t इक्वल टू, दिस इज, जब ये प्रोजेक्ट किया तब ये t इक्वल टू 0 है, और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं बोलता हूँ लेट्स से y. ये चूंकि y डायरेक्शन में हो रहा है, इसको मैं x, यहाँ पे मैं 2 x y एक्सिस बना रहा हूँ जस्ट टू गिव यू फील. दिस इज x, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. अभी ये ऑब्जेक्ट को x एक्सिस से कोई मतलब नहीं, ये ट्रैवल कर रहा है y एक्सिस पे, ठीक? अच्छा, मैंने क्या किया है अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इधर जो भी है पॉजिटिव, इधर जो भी है नेगेटिव. ये मैंने अज्यूम किया. आपका मन करे तो आप इसको नेगेटिव लेके इसको पॉजिटिव कर दिया, तो आंसर सेम आएगा. ये ले लिया मैंने. अच्छा, जब ये पूरा ऑब्जेक्ट ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, मान लो फिर से ये नीचे आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0. तो बेसिकली यहाँ पे हम बोल रहे हैं v इज इक्वल टू u प्लस at. इस इक्वेशन को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? जब ये आपने इसको u से ऊपर फेंका, ठीक है, इट विल टर्न अराउंड. यू कैन फील दिस बिकॉज दिस इज मोर ऑफ वर्क एनर्जी पार्ट, बट यू कैन फील दिस. Ultimately, whatever kinetic energy you have given while throwing it upward, it will lose its kinetic energy slowly, and this kinetic energy will become its potential energy. इतना तो आपने 9th में पढ़ा होगा, kinetic energy, potential energy. And when it turns around and comes back, all that potential energy will again become kinetic energy. So that means magnitude wise, जो आपने इसको initial velocity दी थी, उसको वापस मिल गई होगी. So if this was plus u, while just before hitting the ground, it should be
minus u, because if you were saying this velocity as plus u, so in the same frame of reference you have to call this not u, it has to be minus u. Are you getting this or not? Because in the same problem we cannot, I mean u is magnitude wise same, but पहले ये upwards से अभी downwards है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये v is minus u, u was plus u, what was a? Minus K. Yes, it was minus g. जो जैसा था मैंने रखा, g को माइनस क्यों लिया? क्योंकि मेरे ने जो भी चीज ऊपर के डायरेक्शन में थी वो पॉजिटिव थी, g was acting downwards. So मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अभी g क्या है? माइनस g. If you do everything correct, even if you transform your frame of reference, अगर हम इधर नेगेटिव ले लें इधर पॉजिटिव ले लें तब भी आंसर सेम आएगा, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं हो, बट जो आप लेके चल रहे हो कन्वेंशन, यू हैव टू स्टिक टू दिस. तो यहां से क्या आ गया मेरा? अब मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, इसको इधर भेज दूं u को और इसको इधर ले आऊं, ठीक है? तो ये हो जाएगा gt इज इक्वल टू 2u, t इज इक्वल टू, देखो वही आ गया 2u बाई g. सर लेकिन अपवर्ड्स नेगेटिव ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं. ग्रेविटी के लिए अपवर्ड्स नेगेटिव होना चाहिए. देखो अब जो तुम्हारा डाउट है उसको अभी पूरी तरीके से क्लियर करते हैं. क्यों रखना है डाउट? अगर हम अपवर्ड्स को नेगेटिव ले ले, चलो हैं अपवर्ड्स को नेगेटिव ले लेते हैं, तो अब मैं ये ले रहा हूं, ये डायरेक्शन इज नेगेटिव एंड ये डायरेक्शन इज पॉजिटिव. नाउ जी यू विल टेक पॉजिटिव, क्योंकि अब आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ओरिजिन के इस तरफ सबको नेगेटिव लिया है, इस तरफ सबको पॉजिटिव लिया है. तो अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? माइनस यू. नाउ यू विल बी, let's plug in the values very carefully. Now what will be v? V will be plus u, because it is hitting down, so it is downwards, and downwards we are saying positive, so it will be plus u. Now initial velocity will be minus u. You have transformed the frame of reference. Now g will be plus g, because it is downward, downward is plus. You can see for yourself, again it is 2u by g, right? So that is the beauty of physics, and that's why I love physics. It is so close to what you see and what you do. We are not fooling around, guys. When we are talking about frame of reference, we are not fooling around. जो प्रॉब्लम हमने 2 स्टेप में सॉल्व करी थी, अभी तो शायद सॉल्व भी करते आए होंगे आप लोग 9th में, कि एक बार T1 निकालो, T2 निकालो. इसको आप एक झटके में सॉल्व कर सकते हो if you use the correct set of frame of reference and concepts. आ रही बात समझ में आपको? अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम करेंगे. एनसीईआरटी में भी उन्होंने इसको 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाया है, एक बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ और लेके, एक बार, तो हम भी उसी 2 तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. एंड वील जस्ट गेट कंफर्ट कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस डज नॉट चेंज आवर फाइनल आंसर. इट मे चेंज आवर इंटरमीडिएट आंसर्स और इट विल नॉट चेंज आवर फाइनल आंसर. क्या हो गया? डायमेंशनल एनालिसिस क्या किया? नहीं, वो पूरा टॉपिक डियर होगा आपका इन शॉर्ट वीडियोस, ठीक है? जैसे मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का वीडियो बनाया हुआ है, इसी तरीके से एक डायमेंशनल एनालिसिस का वीडियो बना, वो टॉपिक बहुत इजी है, ठीक है? उस पर टाइम वेस्ट करना, इट इज लाइक ABCD सीखने के लिए टाइम वेस्ट करना, ठीक है? इट्स गोना बी वेरी इजी. हाँ, उसमें कुछ डाउट होगा तो आई विल टेक द क्लास, ठीक है? ओके, चलो क्वेश्चन लिख लो पहले आप लोग, क्योंकि मैं इसलिए लिखने के लिए बोल रहा हूँ, है तो ये एनसीईआरटी में ही, लेकिन एक में नोट्स का एक फ्लो रेडी हो जाता है. जब आप रिवाइज करोगे तो आपको अलग अलग बुक्स को नहीं रेफर करना है. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. आई थिंक सो डियर. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with a velocity of 20 meter per second. यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसको 20 meter per second from top of a multi-story building. From top of a multi-story building. ठीक है? Full stop.
The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter. So this is 25 meters. This is the height of the point from where the ball is thrown is 25 meter. Full stop. First question is how high the ball will rise. How high the ball will rise? Question mark. Second part, how long before it hits the ground? How long it takes before it hits the ground? Take G is equal to 10 meter per second. Take G is 10. Comes down and hits the ground. So we have to find the total time before it hits the ground. अच्छा, फर्स्ट पार्ट आप लोग करने ट्राई कर सकते हो अपने आप. यहां से बॉल को फेंका गया है, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड दिस हाइट, हाउ हाई दिस विल राइज. दैट यू कैन फाइंड. इसमें कुछ, इस पे तो कुछ भी वो नहीं है. यू कैन अप्लाई. यहाँ पे यहाँ पे क्या चीज जीरो होगी, यहाँ पे v जीरो होगा. So you can use an appropriate equation of motion which directly gives you the height. I think v square minus u square you can use. ठीक है, तो यहां से आप लोग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh लगाएंगे हम लोग. v जीरो, वी आर टेकिंग वर्टिकली अपवर्ड इज पॉजिटिव डायरेक्शन. ठीक है, तो v जीरो माइनस यू स्क्वायर इज 20 स्क्वायर and 2g. Now g will be minus, right? So minus 10 into h. So h will be आ जाएगा 20 मीटर. ये तो फटाक से आ गया. Right? This is something you've already done in 9th or 10th level, right? So it's okay. Now the fun begins now. क्योंकि ये तो निकल गया हाइट. अब इन्होंने पूछा है टोटल टाइम. ठीक है, they have asked for total time because how long before it hits the ground. अब ध्यान देना, बॉल यहां गई फिर यहां तक नीचे आई. ठीक है, अब आप इस प्रॉब्लम को अगर 9th के फंडे सॉल्व करते तो आई एम 100% श्योर आप बोलते कि हाँ ये वाला टाइम t1 है, फिर ये हाइट निकाल लेंगे, ये हाइट आई 20, सो 25 प्लस 20 तो हो गया 45. अब ये 45 नीचे गिरने का टाइम निकालोगे आप t2, तो t2 और t1 का टाइम ऐड करके निकालोगे आप 9th राइट. ये करोगे ना 9th के फंडे से. क्या करोगे इसको आप कि पहले t1 निकालते हैं, t1, और फिर 45 की हाइट से इसको ड्रॉप करना है, g की वैल्यू 10 है, तो वो कितना टाइम जाएगा. वैसे मत करो आप एक काम करो, इस पॉइंट को ओरिजिन लो, ठीक है, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लो. अब आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कौन बताएगा मुझे. अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो अगर ये घूम के यहां पे गिर रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग से लेके अब के पर्सपेक्टिव में कितना होगा. ये घूम के ऐसे आई है, ये हाइट 25 मीटर थी, कहीं भी गई है ऊपर, लेकिन फाइनली तो यहीं पे नीचे आई है. तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, प्लस और माइनस? माइनस, क्योंकि वी आर टेकिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव. तो इसका मतलब है टोटल टाइम निकालने के लिए हम इसको t ले लेते हैं. ठीक है, नाउ u फॉर दिस इज प्लस 20, u फॉर दिस इज प्लस 20. इन आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपवर्ड इज पॉजिटिव, g will be plus 10 or minus 10? Minus 10, very good. And my displacement h, इसको y बोलते हैं, y is equal to minus
25। ठीक है, इसको यूज करके नाउ लेट्स यूज इक्वेशन y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसको सॉरी इसको मैं बोल रहा हूँ s लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, नाउ प्लग इन एवरीथिंग वेरी केयरफुली। डिस्प्लेसमेंट u t समथिंग और फिगर आउट a, displacement anyways you guys have told it is minus 25, u was 20 5 I guys, this will be plus 1 by 2, g is minus 10 into t square। प्लस पहले तो मेक श्योर करो कि ये आपने एकदम मैच आपको समझ में आ रहा है क्यों लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट इज माइनस 25, 20t प्लस हाफ दिस। Panav, following right? Following right? Whatever you think. Now let's solve this. Minus 25 is equal to, this will be 5, 20t minus 5t square। One smart step we can take here, we can divide the entire equation by 5 because every term is a multiple of 5। हाँ, कॉमन भी ले सकते हो आप, कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व तो करनी पड़ेगी। कॉमन लेना है डिवाइड करना है एक ही बात होती है। 5 कॉमन लेने की बात कर रहे हो ना, 5 टी यहाँ पे नहीं कॉमन है ना, 25 है ना। अगर पूरी इसमें भी टी होता तो कर लेते तब। तो ये डिवाइड कर लिया, -5 ये हो गया 40 और ये हो गया -t स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा t स्क्वायर -40 -5 इज इक्वल टू, कैन यू गाइस फैक्टराइज दिस मिडिल टर्म स्प्लिट, t इक्वल टू 5। तो क्या आएंगे फैक्टर्स, t स्क्वायर ये -5t प्लस t माइनस 5, दिस इज t minus 5 plus t minus 5, so t minus 5 and t plus 1 is equal to 0, t can't be -1, so t is equal to 5 is the answer। It is 5 seconds after it will hit the ground। अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, you have got this answer, right? You have got this answer। Now just for your comfort, try to break this in 2 times। First going up t1, figure that out, then coming down, figure that out and see if you are getting total time as 5। वैसे ही किया था, but understand this is just one shot। ठीक है, आसानी से हो रहा है but understand in certain situations, right, when you are not dealing with the displacement, you will have to unnecessarily do in 3 parts। यहाँ पे it is coming in 1 part। Yeah, but for the rest of the guys, please try to break it in 2 parts, one going up and then one coming down। Going up कैसे निकालोगे आप, v is equal to u plus at वाले इक्वेशन, वो t1 निकल जाएगा, v is 0। फिर यहाँ से आपने हाइट ऑलरेडी निकाला हुआ है 20 meters, so it has to fall down 45। So again using ut plus half at square you can find t again। यहाँ पे आपका जो ये सेकंड डाउनवर्ड मोशन है उसके लिए u क्या होगा, 0, क्योंकि it will start to fall down from a 0 velocity, so it will be half gt square in a way। So try to figure out those t1 and t2 if you and see if you get total time as 5। Please do this।
First, try to figure out time t1, which is going up with u minus gt, and then try to figure out t2 with half gt square. H is equal to half gt square. Now h you will take as 20 plus 25. आ रहा है? शायद 2 seconds और 3 seconds आएगा अलग अलग. 2 seconds up एंड नीचे निकालोगे तो शायद 3 seconds आएगा. No, u will be 0, yes. V will be something, but yeah, but u will be 0, yes. सर मेरा t1 नेगेटिव 2. क्या कुछ गड़बड़ किया आपने? क्या किया? तो ये वाला फॉर्मूला नहीं ये u by g, तो u क्या लिया तुमने? 20. डियर अब आप ये गड़बड़ कर रहे हो. जो ये वाला फॉर्मूला आया है ना, इस फॉर्मूले में ये एजम्पशन माइनस जी करके फिर ये फॉर्मूला आया था. तो आप सिर्फ जी की वैल्यू डालनी है. नहीं -10 तो नहीं डालना. क्यों? क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में जब हमने डिराइव किया था अभी ना, तब जी की जगह माइनस जी ऑलरेडी डाल दिया था. तब फिर से आप माइनस कर रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा. दैट विल बी डबल माइनस ना. गॉट इट अथव? You guys got 5 seconds? Sakshi? Jia, you got 5 seconds both ways? Doing it. Apu? See, for the benefit of everyone मैं कर देता हूँ. देखो first time ऊपर जाने का है, ठीक है? तो u is 20, ठीक है? And g is -10, v is 0. v is equal to u plus 80. That means 0 is equal to 20 minus 10t. तो यहाँ से t is equal to 2 seconds आ गया. ठीक है? अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहे हो, मैं इसीलिए बोलता हूँ, ये आपने किसी ने u by g यूज किया है डायरेक्टली और यहाँ फिर से माइनस डाल दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला आया ही तब है जब हमने g को माइनस जी डाला था, राइट? इसलिए डोंट मेक इट 2 माइनस. Now coming back, this total height was 45 meter, 20 it went up and 25 this is the height of the building. So total 45 it has to come down. H is equal to half, I'll write complete, H is equal to ut plus half gt square. H is 45, right? U is 0, half. Now this is, we are taking h positive, right? So downwards is positive. So g will be now plus 10 t square. So t square is 9. That means t is t2. Let's call it t2. So total time would be capital T is equal to t1 plus t2, which is 2 plus 3, which is 5 seconds. सर फॉर्मूला अप्लाई करते हो हमें कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव देना है या पॉजिटिव? हाँ, सो देखो ये फॉर्मूले में याद रखो कि अगर आपने फॉर्मूला किसी ने याद किया हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट का, मान लो tu by g है. नाउ फॉर्मूला इज डिराइव्ड फॉर अ सिनेरियो. सो माय क्वेश्चन इज कि हाउ डू यू नो? यू हैव टू प्लग इन प्लस और माइनस. व्हेन यू आर यूजिंग अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, डियर, you are just putting the values. Understand? Because this formula is under the consideration, a object is thrown vertically upwards and it comes down.
So whatever direction consideration was supposed to be taken, they have already been taken, and this formula. So this formula is ready-made formula for time of flight. While you use these equations, these are not ready-made equation for your scenario. These are general equations. In this you have to take, क्योंकि अभी ये फॉर्मूला भी कैसे आया था ना, कैसे किया था, इसी में a को माइनस जी डाल दिया था, तो अब दोबारा आप माइनस डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, तो फॉर्मूला अगर आप यूज कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू पुट एक्स्ट्रा माइनस, एंड इट विल कम विद प्रैक्टिस. नॉट एक दिन में आप चैंपियन थोड़ी ना बन जाओगे, है ना, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. चलो अब दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि फ्रेम ऑफ, यहाँ पे मेरा एक फोकस ये था, या आपको ये बताना कि हमने एक बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यूज किया. डिस्प्लेसमेंट क्या है, -25. हमको सेम आंसर आया है. ठीक है, हमें सेम आंसर मिला है, जो कि आप अलग अलग करते, पहले ये फिर ये. सो यू कैन जस्ट रीविजिट दिस क्वेश्चन वंस अगेन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जस्ट टू मेक योर कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन क्लियर. सो फुल मार्क्स टू एनसीईआरटी. उन्होंने क्वेश्चन से देखो, एनसीईआरटी क्वेश्चन जिन्होंने बनाए डियर, डोंट अंडर एस्टिमेट और डोंट राइट ऑफ. क्यों? क्योंकि ये वो बंदे हैं जो ज्यादातर इसरो डीआरडीओ के साइंटिस्ट जिन्होंने महीनों सालों लगा के प्रॉब्लम लिखी है एनसीईआरटी. ठीक है, तो पहले हम लोग के टाइम में जब हम लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे थे तो सब लोग बोलते थे एनसीईआरटी को ऐसे बाइबल की तरह पढ़ो ही पढ़ो. ठीक है, और बहुत ही प्यारी बुक है, अगर आप इसको एज ए स्टूडेंट पढ़ना चाहो, और टाइम नहीं रहता इतना आप लोगों के पास, तो उसी से प्रॉब्लम ही मैंने ली है. अ प्लेयर थ्रोज ए बॉल, a player throws a ball upwards. Player throws a ball upwards with an initial speed of 29.4 meter per second. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन तो इसका ये है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. सिंपल पूछा इन्होंने. फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है, फिर पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, व्हाट इज वैल्यू ऑफ speed and acceleration at highest point. राइट, पहला पूछा था डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है, ये बी पार्ट है. सी पार्ट इन्होंने पूछा है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है. चूज x इक्वल टू 0 and t equal to 0 seconds, x equal to 0 meters, t equal to 0 seconds, to be location and time, to be location and time of the ball at its highest point. यहां पे है ट्विस्टर. ये मैंने बोला कि अब मैं तुमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता रहा हूं, अपनी मर्जी से फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम नहीं ले रहे हो. हम लोग अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते तो नेचुरली बिना बोले आप लोग अज्यूम कर लेते कि ये पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट मेरा ओरिजिन है. राइट, ये करते हम लोग, और यहीं से हम लोग अपना हाइट और डिस्प्लेसमेंट सब निकालते. दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ योर मोशन. उन्होंने आपके उस एजम्पशन को चैलेंज किया. उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें बता रहा हूं एज अ प्रॉब्लम मेकर, यू हैव टू टेक द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बॉल एज ओरिजिन. मतलब ये जहां तक भी जाएगी उस पॉइंट को यू हैव टू टेक ओरिजिन. ठीक है, एंड डायरेक्शन नहीं बता रहा है,
भाई ओरिजिन बता दिया कि ये ओरिजिन है, तो किधर प्लस किधर माइनस वो भी बताएगा. एंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड वर्टिकली डाउनवर्ड को ले लो आप पॉजिटिव डायरेक्शन. तो आपको ओरिजिन भी बताया और ये भी बोला कि इसके नीचे जो भी है पॉजिटिव, इसके ऊपर जो भी है वो नेगेटिव. ठीक है. विद दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस गिव द साइंस ऑफ पोजीशन वेलोसिटी. विद दिस assumption गिव द साइंस ऑफ number 1 velocity, number 1 position, velocity, number 3 acceleration. With this as a frame of reference, give the signs of position मतलब is displacement, velocity and acceleration during upward and downward motion of the ball. During upward and downward motion of ball. गाइस, अब फिजिक्स को अपने सामने अगर आपको फील करना है, देखना है फिजिक्स को, तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम को एकदम प्योर थॉट से देखना पड़ेगा. सारे आपके जितने प्रॉब्लम आपने अभी तक जिस तरीके से किए हैं सब भूल जाइए आप. आपको वो बंदा बता रहा है कि बॉस दिस पॉइंट इज योर ओरिजिन, इसके नीचे की डायरेक्शन आपकी है पॉजिटिव, इसके ऊपर की डायरेक्शन है नेगेटिव, एंड दिस इज योर ओरिजिन. अब पहले एक अपवर्ड मोशन होगा इसका, उसके टाइम पे मुझे ये तीनों के साइन चाहिए. व्हाट विल बी द साइन ऑफ दीज 3 थिंग्स. एंड फिर एक डाउनवर्ड मोशन होगा, वो टाइम पे मुझे भी तब भी मुझे इन तीनों का साइन चाहिए. ठीक है. तो पहले अपवर्ड मोशन को टारगेट करते हैं. बॉल स्टार्टिंग यहां से हो रही है और ऐसे ऊपर जा रही है, ये है अपवर्ड मोशन. इस दौरान इस टाइम इंटरवल में यू आर सपोज टू फिगर आउट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब साइन, डिस्प्लेसमेंट का साइन, वेलोसिटी का साइन एंड एक्सेलरेशन का साइन, प्लस और माइनस. एक्सेलरेशन का नहीं दिया. आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देख नहीं रहे हो कि उसने किसको पॉजिटिव बोला है और किसको नेगेटिव. आप नहीं देख रहे हो कि वो किस चीज को पॉजिटिव बोल रहा है. आप एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ है, जब वो ऊपर जा रही है बॉल तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे. और नीचे वो क्या बोल रहा है, टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव. यही चीज मैं बोल रहा हूँ, दिमाग में हमने बैठा रखा है ना, उसको चैलेंज किया उन्होंने. ऑब्वियसली हो, यहां पे देखो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव. पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड. वी वुड हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम टेकिंग दिस एज पॉजिटिव, दिस एज नेगेटिव. उन्होंने उल्टा कर दिया, इसको पॉजिटिव बोल दिया, उसको नेगेटिव बोल दिया. So direction of velocity throughout will be what? Upwards. And upwards is what? Negative. Upwards is negative, dear. Upwards is negative. So first of all, let's talk about position. आप लोग जंप कर रहे हो, पहले पोजीशन डिस्प्लेसमेंट देखो. कौन मुझे बताएगा कि अगर ये पॉइंट मेरा ओरिजिन है, गो बैक टू माय फर्स्ट सेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अगर ये पॉइंट मेरा ओरिजिन है और इस बॉल का मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट देखूं, तो ओरिजिन से ये मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हुआ नीचे की साइड, और थ्रू आउट द जर्नी ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू में चेंज होता रहेगा. लेकिन जब तक मैं हाईएस्ट पॉइंट पे गया नहीं हूं, डिस्प्लेसमेंट है तो मेरा नीचे के साइड ही, एंड विच इज पॉजिटिव. डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव. सो पोजीशन अपवर्ड में, इसको यहां लिख रहा हूं मैं. हाँ, पोजीशन अपवर्ड्स
देखो और जब वो अपवर्ड्स की ओरिजिन कहाँ पे है? ऊपर। तो ये डिस्प्लेसमेंट जब हम लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है, मैंने यहां पे ओरिजिन ले लिया 0,0, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, तो ओरिजिन से इसकी तरफ एक लाइन ज्वाइन करो आप, ये डायरेक्शन, और इसको आप पॉजिटिव बोल रहे हो, इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट घूम के टर्न करके यहाँ पे आ भी गया, यहाँ पे आ गया, बट अभी भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। ये मैंने आपको बताया था कि डोंट चेंज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, की ऑब्जेक्ट ने यू टर्न मारा है तो अब मैं ओरिजिन को यहां से यहां ले जाऊं, वो नहीं करना है हमको। तो अभी भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो ये ऐसे ही है डिस्प्लेसमेंट, इट इज स्टिल पॉजिटिव अनटिल अनलेस इट इज हियर इट इज पॉजिटिव। जब ये इस तरफ आ जाएगा, अब इसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो गया, मेरी ओरिजिनल डायरेक्शन में ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव। आई बात समझ में? तो आप जरा पीछे आओ, जरा यहां पे जो हम कर रहे थे, यहां ओरिजिन है इधर, हमको बोला गया भाई कि वर्टिकली डाउनवर्ड को पॉजिटिव लो, मैंडेट किया गया है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया है। अभी ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा ही तो होगा। यू हैव टू ज्वाइन, योर टेल इज एट ओरिजिन, योर हेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज पॉजिटिव डियर, इट इज टोल्ड बाय द प्रॉब्लम मेकर। जब ये ऊपर भी आ रहा है, अब तुम अगर अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब तुम ऊपर अगर आ रहे हो तो अपना ओरिजिन यहां से यहां ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। यू आर चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम। जब आपको ओरिजिन बोला गया कि यह फिक्स है तो आप क्यों चेंज कर रहे हो उसको? ये मान लो बीच में यहां पे कहीं है, यहां ऑब्जर्वर तो अभी भी यहीं पे बैठा है भाई, वो तो नीचे देख रहा है बॉल को, तो उसके लिए तो अभी भी इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही है। आर यू गेटिंग इट दिस और नॉट? गाइज दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको सही में चीजें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्लियर है कि नहीं है, ये यहां से समझ में आता है। और यही गलतियां हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अच्छे क्वेश्चंस में वी डू, वी इम्प्लिसिटली मेक दिस मिस्टेक्स और उसको बोलते हैं कि ये सिली मिस्टेक हो गई। This is not a silly mistake. This is a well performed conceptual mistake. This is not a silly mistake. अरे यार मैंने ना ये डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव निकल लिया और आंसर बता गया। तो अभी समझो, ये ऑब्जेक्ट आपको लग रहा है ऊपर जा रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि आपकी आदत है कि जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वहां मेरा ओरिजिन है। वो होता है 99 पॉइंट, मैंने कल बोला भी था, 99.9% केस में यही करते हैं, जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है उसको हम ओरिजिन ले लेते हैं। लेकिन वो बोल रहा है कि ऑब्जर्वर ऊपर बैठा हुआ भाई, हाईएस्ट पॉइंट पे, वो देख रहा है इस बॉल को, तो उसके लिए तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ये है और ये उसके लिए ये पॉजिटिव है, तो उस केस में पोजीशन हो गई पॉजिटिव। तो यहां से चलो यहीं पे लिख लेता हूं मैं। तो फर्स्ट पार्ट अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन पोजीशन हमने समझ लिया सबने कि ये पॉजिटिव है। एनी डाउट? अब देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इसकी किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, वेलोसिटी इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में। जब तक ये हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचता, थ्रू आउट इसकी वेलोसिटी ऊपर है, एंड ऊपर की डायरेक्शन क्या बोल रहा है वो? नेगेटिव। तो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। वेलोसिटी इज नेगेटिव। मतलब सीरियसली आई एंजॉय दीज प्रॉब्लम्स गाइस। इफ समवन चैलेंजेस इस तरीके से मजा आता है करने में, ठीक है। फिर बात कर रहा है वो एक्सीलरेशन के साइन की। एक्सीलरेशन का साइन जब ये ऊपर, एक्सीलरेशन तो अगर आप देखो तो एक्सीलरेशन का साइन कहीं चेंज ही नहीं हो रहा डियर, वो थ्रू आउट नीचे ही है। जब भी कोई चीज हवा में चल रही है ऊपर नीचे, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड। वी टेक इट प्लस माइनस, दिस इज आवर प्रॉब्लम, बिकॉज हम क्या बोलते हैं, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो हमने इसको ओरिजिन कह दिया, हमारा ऊपर वाला पॉजिटिव है तो हमने जी को नेगेटिव ले लिया उस टाइम। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तुरंत हमने ओरिजिन को ऊपर शिफ्ट कर दिया, अब देखा कि ये इसको पॉजिटिव कर दिया, तो इस केस में मेरा
जी पॉजिटिव हो गया। बट अगर आप ओरिजिन यहां पे फिक्स रखो, इसको चेंज ना करो, तो जी तो थ्रू आउट इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। सो जी तो थ्रू आउट पॉजिटिव है, बीट अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज बीइंग टोल्ड एज पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है आप लोग को? अब आप लोग ध्यान से सोच के मुझे डाउनवर्ड के आंसर बताओ। फर्स्ट पोजीशन का पॉजिटिव, वेलोसिटी का भी पॉजिटिव। यस, वेलोसिटी फ्लिप हो गई है। वेलोसिटी पहले नेगेटिव थी, पॉजिटिव, एंड एक्सेलरेशन वुड रिमेन टू बी पॉजिटिव। ओके, तीनों चीजें फिर से एक बार दिखा देता हूं। नीचे आ रहा है ये, वेलोसिटी हैज बीन फ्लिप डायरेक्शन, वेलोसिटी पहले नेगेटिव थी, डाउनवर्ड अपवर्ड, अब डाउनवर्ड हो गई तो पॉजिटिव। एक्सेलरेशन अभी भी डाउनवर्ड है, पॉजिटिव। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन, उस केस में भी आप यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन विच इज पॉजिटिव। मतलब पता है ये कैसा केस है डिस्प्लेसमेंट का? मैं बताऊं आपको ये कैसा केस है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल मोशन से ट्रैक करूं, यहां से ये ओरिजिन है, मैं बोल रहा हूं ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट गया, यहां पे एक बॉल थी, ठीक है, मैंने एक बॉल को यहां से रोल किया, ये टकराई और वापस मैंने यहां पे पकड़ ली, उसको उधर जाने ही नहीं दिया, ठीक है, मैंने इसे रोल किया बॉल को, वो गई बाउंस करके वापस मेरे पास आ गई, यहां से और मैं ओरिजिन हूं, मैं देख रहा हूं उसको, बोल रहा हूं ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो थ्रू आउट दिस मोशन मेरे पर्सपेक्टिव में इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है यार। गलती कहां होती है? हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ओरिजिन को मूव करा रहे हैं बॉल के साथ। जब बॉल वापस आना शुरू हुई तो हमने एज्यूम कर लिया अब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि तुमने ओरिजिन वहां पे शिफ्ट कर दिया। You shifted the origin there. That's a wrong thing. You're still having the origin here. So as long as ball goes on that side, the displacement is positive. Understand? Okay. Okay. अब एक फॉर्मूला हमें सीखना है which is, see हमारे पास 3 equations of motion है, उसमें एक इक्वेशन होती है s is equal to ut plus half at square, right? So इसका एक small flavor है, इसमें क्या है, what is this s? This is distance or displacement, but this is displacement in t seconds. This s is displacement in t seconds, right? So मतलब क्या हुआ, अगर ऑब्जेक्ट यहां से लेट्स से स्टार्टिंग से ट्रैवल कर रहा है, यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, इस तरीके से, या इसको अलग से बना देता हूं मैं, इस तरीके से, ऐसा, ये हमारा ओरिजिन है, लेट्स से x इक्वल टू 0, दिस इज t इक्वल टू 1, दिस इज t इक्वल टू 2, दिस इज t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 4, लेट्स से दिस इज सम t n minus 1 and this is tn, yes, सिर्फ n minus 1 और n लिख लेते हैं, n minus 1 और now when we say displacement in t seconds means we are calculating the displacement from t equal to 0 until some time, right? So this complete, correct? If someone asks us, let's say, what is the displacement in third second? Now this is different from someone asking what is displacement in 3 seconds. Can you guess the difference? Displacement in 3 seconds or displacement in third second? What is the difference? When I say in 3 seconds, मतलब मैं t equal to 0 से लेके t equal to 3 तक आ रहा हूँ,
जब मैं थर्ड सेकंड बोल रहा हूं इसका मतलब कि 2 जब खत्म हुआ और 3 सेकंड कंप्लीट हुए, ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन में वो कितना मूव किया, दिस. सो दिस इज लेस, दिस इज मोर. दिस इज कंप्लीट फ्रॉम t इक्वल टू 0. सो दिस इज ड्यूरिंग t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3. ये आप निकाल रहे हो यहां, और ये आप निकाल रहे हो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3. इज दिस थिंग क्लियर? राइट. सो नाउ इफ आप उसमें बोलोगे सर इसमें फिर बड़ी बात क्या, अगर मुझे ये निकालना होगा तो मैं पहले इस फॉर्मूले से 2 वाला निकाल लूं, t इक्वल टू 2 डाल के वो आ जाएगा, और फिर इसी फॉर्मूले में मैं t इक्वल टू 3 डाल दूं, तो ये मतलब एक डिस्टेंस ये आ जाएगी 0 से 2 तक, एक डिस्टेंस आ जाएगी 0 से 3 तक. फिर मैंने इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो जो बचा हुआ डिफरेंस वो आ जाएगा. यही तो करूँगा टिपिकली मैं, लेकिन ये बार बार करोगे तो इसमें जाएगा टाइम. तो हमारे पास के लिए है डायरेक्ट फॉर्मूला. ये डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत टाइम आपका सेव करेगा. डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इसका फॉर्मूला होता है डियर u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1. ये आप फॉर्मूला याद करिए, क्योंकि ये इस फॉर्मूले में बहुत क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत आते हैं, आपके स्कूल एग्जाम में भी आ सकते हैं. दिस विल डायरेक्टली गिव यू डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकेंड. मतलब अगर मुझे थर्ड सेकेंड निकालना हो तो s थर्ड ये आ जाएगा, u इज वॉट एवर u, ये a बाई 2 जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा आपको, 2 इंटू 3 माइनस 1 विच इज 5. सो ये आ जाएगा u प्लस 5a बाई 2. वेरी, ये डायरेक्टली निकल आया आपको. सो दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर फॉर योर. सो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी किया, ये एग्जाम्पल किया, ये एग्जाम्पल किया. अब मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप लोग एज ए होमवर्क ले सकते हो. देन आई विल हैव टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. पार्टिकल इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. A particle initially moving with a velocity of 5 meter per second starts decelerating, मतलब retarding, starts decelerating at a constant rate of 2 meter per second square. डिसिलरेशन है इसलिए मैंने उसको -2 लिख दिया है वैसे. ठीक है. Particle initially moving with a velocity of 5 meter per second starts decelerating at a constant rate of 2 meter per second square. Part A. Determine when the particle becomes stationary. Determine when the particle becomes stationary means comes to rest. B part. Distance traveled in 2 seconds. Distance traveled in 2 seconds. And C part. Distance traveled in second. In 2 seconds and then ये वाला सेकेंड. ठीक है. क्लियर. चलो ये आप लोग आराम से करना. विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज
graphical analysis of वन डी मोशन। ठीक है, सो इसमें पहला मॉड्यूल है आपका पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये क्यों कर रहे हैं हम? सी मैनी a times when an object is under motion we do not have anything but a graph of the motion। कई बार ऐसा होता है कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम्स they give you trajectory of the particle as it's moving and it computer generates a graph। now let's say you become, let's say मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर, तो मैं एक कार का मोशन एनालाइज करना है and the ground folks, you are the engineer, the ground folks come and say, see, this is the graph looking like for this car। now you'll have to see that you will not know what is u, what is g, or acceleration, what is time. all you have is the graph, so you should be comfortable interpreting the graph and get some vital stats from the graph itself। that is the objective, राइट कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, इज इट एट रेस्ट, इज इट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इज इट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऑल दोज थिंग्स। एंड इफ कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ वन ऑफ दोज थिंग्स, हाउ कैन आई फाइंड द डिस्प्लेसमेंट लुकिंग एट द ग्राफ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कहीं कहीं इसको पोजीशन टाइम ग्राफ बोलते हैं। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्लियर डिफरेंस आपको समझ में आएगा नेक्स्ट टॉपिक में। बट ये मान के चलो जब भी हम ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट लेके चल रहे हैं तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। आप दोनों का भी अभी सेम ले लो, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो पहला ग्राफ आपका बनता है ये इस तरीके का। ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस यू ऑलवेज हैव टाइम एंड हियर यू हैव टिपिकली द पोजीशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक, the first flavor is the graph looks like a straight line inclined to time axis। the graph looks like a straight line inclined to time axis। this means अगर ऐसा ग्राफ है आपका तो पहली चीज तो ये है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरी चीज वेलोसिटी इज पॉजिटिव। क्या चीज? वेलोसिटी इज पॉजिटिव। क्यों? इफ द स्लोप इज एन एक्यूट एंगल, दिस इज एंगल विच इज लेस देन 90 degrees। if this slope of the line is less than 90 degrees, that means velocity is positive, that means displacement is increasing with respect to time। as you can see from the graph itself, as you move ahead in time, the displacement from an observer who is sitting here is increasing with time। so if displacement is increasing, we call the velocity positive। what is velocity? Displacement upon time। if displacement is positive, velocity is positive, right? so this is the second thing you can say from this, velocity is positive। if you know certain values, let's say you know a particular reading, let's say time t equal to t1 पे ये जो d1 है, और let's say एक particular time, सॉरी इसको t2 बोलते हैं, इधर t1 पे d2, ये d1। if you locate these two set of readings, time t1 पे इसका पोजीशन d1 है, टाइम t2 पे इसका पोजीशन d2 है, you can figure out the magnitude of velocity, that will be d2 minus d1 upon t2 minus t1, which is nothing but tan theta। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा स्लोप का, तो उसमें डिटेल में मैंने ये फंडे आपको वीडियोस मिले हैं कोविड,
ज्वाइन वन डे लेट, तो यूट्यूब चैनल जो है मेरा आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है. आई पब्लिश सम स्टडी मटेरियल देयर. सो दिस इज हाउ यू विल फिगर आउट. सो यू हैव टू मैकेनिज्म्स. पहला मैकेनिज्म डियर क्या है कि आपके पास ये थीटा को नहीं दिया हुआ है आपको, लेकिन डायग्राम में ये दो रीडिंग्स दिए हैं. ये सीईटी में बहुत आते हैं भरभर के क्वेश्चन है, सीईटी और जेईई मेंस में. ये दो रीडिंग आपको दिए हुए हैं, करस्पॉन्डिंग ये दोनों बताए हुए हैं. तो आपको स्लोप निकालने का फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. यहाँ पे y2 y1 की जगह क्या हो गया, d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस d1. एक तो ये तरीका हो गया. कभी कभी हो सकता है कि वो आपको ये रीडिंग कुछ ना दें, रादर ये बोल दें कि ये थीटा जो है 60 डिग्री है या कोई भी एंगल है. अब आप ढूंढते बैठोगे रीडिंग तो मेरे पास है नहीं. अरे अल्टीमेटली आपको निकालना क्या था, tan थीटा. उसने आपको सीधा रेडीमेड थीटा दे दिया, तो आप tan 60 निकाल दो. दैट विल बी योर वेलोसिटी व्हिच विल बी ठीक. तो इस तरीके से ये स्पेसिफिक एग्जांपल दिया है मैंने, लेकिन तो ये तीन चीजें आप बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में है कि नहीं है, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नहीं नेगेटिव है, और उसकी वैल्यू क्या है. ठीक है. ये दिस इज ऑफ यू कैन से फ्लेवर नंबर 1. नाउ विल टॉक अबाउट फ्लेवर नंबर 2. इस केस में आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखा हुआ. ग्राफ कुछ अगेन दिस इज d एंड दिस इज d. स्पीड यहां पे भी यूनिफॉर्म है, रिमेंबर वर्किंग. इट इज ऑल्सो अ यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि आप कहीं पे स्लोप निकालोगे सेम ही आएगा. स्पीड इज स्टिल यूनिफॉर्म, बट यहां पे डियर वेलोसिटी जो है ये नेगेटिव है, क्योंकि एज यू आर मूविंग अहेड इन टाइम फ्रॉम ए ऑब्जर्वर हियर, ऑब्जेक्ट इज कमिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, राइट. इसको आप स्लोप से अगर निकाल, अब यहाँ पे जो थीटा एंगल है डियर, थीटा एंगल आपको मेजर करना होता है हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. इसको घुमाना होता है लाइन तक. तो इस केस में आप थीटा मेजर करोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ऐसे. यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यू टर्न लाइक दिस, इट वाज एक्यूट. हियर थीटा विल बी ऑब्ट्यूज. ठीक है. और अभी भी जो आपकी वेलोसिटी होगी वो निकलेगी वैसे ही tan थीटा. जब आप tan थीटा निकालोगे, थीटा ऑब्ट्यूज के लिए tan हमेशा नेगेटिव आता है. या फिर अगर आप दो कोई रीडिंग लेके करोगे, जैसे मान लो आपने एक ये रीडिंग लिया, ठीक है, दिस इज लेट्स से d1, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम है t1, फिर आपने एक करस्पॉन्डिंग ये रीडिंग लिया, टाइम इज t2 एंड डिस्प्लेसमेंट इज d2. अब आप खुद यहाँ पे देखो, जब आप d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1 करोगे तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी कि नहीं, क्योंकि d2 इज लेस देन d1. तो ये d1 बड़ा है, d2 छोटा है, तो d2 माइनस d1 करोगे तो ये क्वांटिटी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी. t2 माइनस t1 इज स्टिल पॉजिटिव, ओवरऑल नंबर विल बी नेगेटिव. तो चाहे आप स्लोप कॉन्सेप्ट से निकालो, चाहे आप tan थीटा से निकालो, दोनों केस से आपकी वेलोसिटी नेगेटिव होने वाली है. दिस इज द सेकंड फ्लेवर. थर्ड फ्लेवर, इन माई मॉड्यूल ये सब लाइन से बने हुए ग्राफ. ये थर्ड फ्लेवर है. इस केस में द ग्राफ लुक्स लाइक अ कर्व. This is time and this is displacement. So whenever you find a curve, you can clearly say
that this graph is non-uniform speed. Why non-uniform speed? For a curve, the slope is given by the tangent at a particular point. So if you draw a tangent at any point, it will not be same. The slope will not be same. यहाँ पे देखो कितना आ रहा है थीटा एंगल, इतना सा, ठीक है. दिस इज योर स्लोप, लेट्स से थीटा 1. फिर आप आगे जाओ थोड़ा, यहाँ पे स्लोप निकालो टेंजेंट का, टेंजेंट ड्रॉ करो. यहाँ पे स्लोप देखो थीटा 2, लेट्स से दिस इज 0.1, दिस इज 0.2. Obviously we can see theta 2 is greater than theta 1, right? ये एंगल बड़ा, एंगल छोटा है. इसका जैसे जैसे स्लोप हम आगे जा रहे हैं, स्लोप बढ़ रहा है, ग्राफ का स्टीपीनेस बढ़ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज अ एक्सीलरेशन केस. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो या तो एक्सीलरेशन होगा या डिसेलेरेशन होगा. अगर यूनिफॉर्म स्पीड नहीं चल रही है तो क्या होगा? दो ही केस हो सकते हैं, या एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन. तो ये केस में एक्सीलरेशन. बहुत क्वेश्चन आते हैं डियर इस पे, सिर्फ ग्राफ देख के आपको ही जज करना होता है, ठीक. अब यहाँ पे हम अगर किसी ने पूछा वेलोसिटी निकालो तो वो रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन. ये जो हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं, दिस इज ओनली फॉर अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे अगर हम आ गए कर्व वाले केस में, so all you can do is either you draw a tangent, measure this angle and do a tan theta. Otherwise someone gives you the equation of this motion and you do dy by dx, right? Slope निकालने के लिए dy by dx. Otherwise just by looking at the readings we cannot judge, because this is an instantaneous thing. Yes, if you take two corresponding readings, जैसे आपने एक ये ले लिया, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, मान लो मैं दो करस्पॉन्डिंग रीडिंग निकाल लूं, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, इससे करस्पॉन्डिंग d1 है, d2. अगर मैं गलती से d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1 कर दूं इस सिनेरियो में, तो मुझे क्या क्वांटिटी मिलेगी? कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस या फिर इट विल गिव यू एवरेज वेलोसिटी. क्योंकि आपने क्या किया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम किया है. तो ये आपको इंस्टेंटेनियस कहां से मिल जाएगी? इंस्टेंटेनियस यहां पे इसलिए मिल रही थी क्योंकि ये यूनिफॉर्म थी. यूनिफॉर्म में तो इंस्टेंटेनियस क्या और एवरेज क्या सेम है. लेकिन जब आप इस केस में आ गए हो और आपने गलती से ये कर दिया है, तो टेंशन नहीं है, कुछ मिला है आपको, प्रसाद तो मिला है, यू हैव गॉट इट, बट दिस इज नॉट इंस्टेंटेनियस, दैट इज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. ठीक है. So okay, these are the two important things. Now इसका fourth flavor, सर अच्छा आज तो प्रैक्टिस क्लास आप लोगों को, ठीक है. Fourth case, another very important case. The graph looks like this. Again, I can say this is a non-uniform speed case because it's a curve. Non-uniform speed. Second thing is whether it is acceleration or deceleration or retardation. Retardation. You guys might have guessed by now, because if you see slope, slowly it is reducing. The slope is reducing. इस वाले में slope was increasing, so it's a retardation case. इस वाले में अगर हम वैल्यूज लेके वेलोसिटी निकाले तो वो एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि डियर एवरेज इसलिए है, दिस इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक. टोटल डिस्प्लेसमेंट, अरे ये डिस्प्लेसमेंट d2 है टोटल, ये d1 है, तो इन दोनों टाइम इंटरवल की बात अगर हम कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इतना ही तो होगा. अगर हम जीरो से स्टार्ट करते तो ये जीरो से आ जाता, राइट. अगर दो टाइम इंटरवल ले रहे हैं तो ये d1 से d2 तो क्या, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये टोटल टाइम हुआ, और ये फॉर्मूला किसका होता है? एवरेज वेलोसिटी. ठीक है. यहाँ पे हो गया रिटार्डेशन केस. ठीक
ठीक, अच्छा अब मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको बता रहा हूं जो आपको इंटरप्रेट करना होगा ग्राफ देख के। लेट्स से माय ग्राफ इज लाइक दिस, my graph is like this. This is time, this is displacement. One graph looks like this. Another graph looks like this. Let's say this is graph A and this is graph B. दोनों ग्राफ्स में क्या डिफरेंस है? एक सेल चालू हो रहा है और एक कंस्ट्रक्शन है उसके पास है और एक स्टेशन पे चालू है। तुम ये बोल रहे हैं at t equal to 0 A is not at rest, not at origin, not at origin, and B is at origin. बाकी अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो हम भी बोल सकते हैं कि दे आर मेंटेनिंग सेम स्पीड, यूनिफॉर्म एंड सेम ऑल्सो। द ओनली डिफरेंस इज कि ये थोड़ा सा आगे है इससे और ये इसको फॉलो करेगा, राइट, बिकॉज इट इज ऑलरेडी हैविंग सम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, नॉट वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा ये आप लोग समझ गए? हाँ, अगर मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का है, राइट, और किसी ने मुझे पूछा कि ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू लेट्स से 5 है, ये दिस इज t इक्वल टू 15 है, और यहाँ पे कुछ रीडिंग दी हुई है। मुझे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू ओरिजिन? t equal to, if the question is what is the time object is back to origin or object is at origin, तो भाई t इक्वल टू 0 पे तो ओरिजिन पे नहीं है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे तो ये इतना दूर है, ये वापस आ रहा है टुवर्ड्स ओरिजिन, वापस 15 पे ये इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0 कब हो सकता है? कि जब ऑब्जेक्ट वापस ओरिजिन पे हो, सेम पोजीशन पे हो। इसका मतलब t इक्वल टू 15 इज अ पॉइंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बैक एट ओरिजिन। ठीक, तो ये सब चीजें आपको फील करनी पड़ेंगी। वील डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट पे जाते हैं अपना, व्हिच इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट हेडिंग इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। पहला केस नंबर 1। अच्छा एक सॉरी, मैं इसमें जस्ट एक और आप फ्लेवर लगा लीजिए, मैं लगाना भूल गया उसमें। वन मोर फ्लेवर गाइस, दिस इज 5th। द ग्राफ इज वेरी सिंपल। Graph, this is position, this is displacement, so this is time, and the graph looks like this. Object is at rest. Object is at rest, but not at origin. आराम तो कर रहा है ऑब्जेक्ट, बट लेकिन ओरिजिन पे नहीं, ओरिजिन से कहीं दूर है ना। ओके, इसमें फर्स्ट फ्लेवर है, इट इज लाइक दिस। This is time, and now here it is velocity. The graph looks like this. Velocity is zero. Velocity is zero. Velocity is constant. Velocity is constant. It's a uniform velocity. Yes. Uniform speed. पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, एक्सेलरेशन इज 0।
It is not it is not zero velocity. Zero होती है अगर यहाँ पे ऐसा होता है, right? ठीक है. So you have to be very careful when you judge anything with the graph. Just first see कि what is there on the y-axis, what is on the time axis. ठीक है. Second case. Second case. It's a straight line acutely inclined to time axis. Uniform acceleration. Uniform acceleration, correct. This is a case of uniform acceleration. Perfectly answered. यूनिफॉर्म क्यों है? पहली बात, इसमें दो वर्ड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म क्यों है? बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन. और एक्सेलरेशन इसलिए बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, दैट थीटा इज एक्यूट. सो इसका वैल्यू निकालना होगा मुझे एक्सेलरेशन का. मान लो एक रीडिंग हमको यहाँ पे दी हुई है टाइम t1 पे, दिस इज वेलोसिटी v1, और एक टाइम t2 पे वेलोसिटी इज गिवन एज v2. So we can figure out, since it is uniform, so average and instantaneous both would be same, and this will be, my dear friends, v2 minus v1 upon t2 minus uniform acceleration. अच्छा, क्या मैं इसको देख के बोल सकता हूँ कि what is the original what is the initial speed of the object? Zero, right? So object is at rest. T equal to 0 पे v is 0. So object started its motion from rest because t equal to 0 पे ये 0. इसका और इस जो मैं ग्राफ अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें और इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ऑब्जेक्ट इज नॉट एट रेस्ट इन दिस ग्राफ, और कोई डिफरेंस नहीं है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस, लेट्स से दिस इज सेकेंड A and this is second B. The only difference between these two graphs is that object is not at rest at t equal to 0. t equal to 0 पे इसकी कुछ स्पीड है, मान लो u. ठीक है. Other than that, it is uniform, and you can, if you want to find out acceleration, you can apply the same technique. Take two readings, do v2 minus v1 upon t2 minus t. Okay. Okay. Now third case. This is like this. It's a curve. So understand slope of vt gives you acceleration always. That's what we did ना. यहाँ पे स्लोप निकाला था, यहाँ पे स्लोप 0 था तो ये 0 हो गया एक्सेलरेशन. यहाँ पे कुछ वैल्यू है, तो अब अगर कर्व के लिए करोगे तब भी सेम कॉन्सेप्ट एक्सटेंड होगा. स्लोप ऑफ vt कर्व गिव्स यू एक्सेलरेशन. सो हियर वी कैन से स्लोप इज इंक्रीजिंग. हाँ, स्लोप इज इंक्रीजिंग. Non-uniform acceleration. This is non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. बस ऐसे ही सब कुछ जज करना होता है क्वेश्चन में. एमसीक्यूज आते हैं बस. आउट ऑफ दीज ग्राफ्स which graph is a case of uniform acceleration, is non-uniform. तो आपको कंफर्ट रहना चाहिए. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. फोर्थ, this is velocity, this is time. Now slope is decreasing, so this is non-uniform retardation. Slope is decreasing.
अगर मान लो इसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसा मैं बनाऊं, ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाए यहाँ पे ऐसे, और ये मान लो अपने को टाइम दिया हो, लेट्स से t इक्वल टू 20 सेकेंड्स, ठीक है, दिस सिनेरियो इज गिवन। अब मुझे पूछा गया, यहाँ बहुत सारे टाइम दिए हुए हैं, और पूछा जाएगा कि व्हाट इज अ मोमेंट व्हेन द रिटार्डेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिकमिंग 0, 20 सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे अगर हम स्लोप ड्रॉ करेंगे, इट विल कम एज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। जब भी ये लाइन टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो गई, इसका मतलब स्लोप 0 हो गया। अब उस ग्राफ में स्लोप का जो भी पर्सपेक्टिव है वो चीज 0 हो जाएगी। तो VT ग्राफ में स्लोप गिव्स अस एक्सीलरेशन, तो इस केस के लिए एक्सीलरेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0 एट दिस पॉइंट। ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस यू विल एक्सपेक्ट इन योर क्वांटिटेटिव एग्जाम्स। जस्ट लुक एट द ग्राफ एंड इंटरप्रेट थिंग्स। इवन स्कूल पे भी आते हैं, ठीक है। Let me check if I have covered all the flavors. हाँ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी देख लो। वैसे तो कम आता है, बट फिर भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसमें सिर्फ आपको 2 ही फ्लेवर याद रखने हैं। एक ये वाला केस, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम, तो ये केस है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा इसका छोटा भाई वो ऐसे बनेगा, ये प्लस, ये माइनस, राइट। तो दिस इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप नॉन यूनिफॉर्म का केस बनाओगे एक्सेलरेशन में, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसी का ठीक है, दैट्स इट। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके पहले के जो हैं वो फ्लेवर्स, ये सारे फ्लेवर्स आपको एक सीरीज में मिल जाएंगे इन माई डियर। 1 सेकंड। नॉन यूनिफॉर्म फर्स्ट इसलिए है क्योंकि चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। और सॉरी 1 सेकंड, हाँ एक गड़बड़ कर दी मैंने। नॉन यूनिफॉर्म ये एक्सेलरेशन, हाँ नहीं, आप सही बोल रहे हो, मेरा मिस्टेक किया। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस ऐसा होगा, द ग्राफ वुड लुक लाइक दिस। This is positive, this has to be down. It has to be negative, guys. अगर आप ऐसे ही बना रहे तो है तो वो पॉजिटिव ही, it has to be acceleration. That's it. अब आप लोग जो है होमवर्क में चेक पॉइंट 2 एंड चेक पॉइंट 3 अटेम्प्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट चेक पॉइंट 4। चेक पॉइंट 4 मैंने रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ाया अभी, चेक पॉइंट 3 तक आप जा सकते हो। सो डू इट टिल चेक पॉइंट 3।